ایک باب رکھوں تھوڑا سا سننا چاہ رہے ہو؟ سیرت پہ آ جاؤں یار. آج ہم لوگوں کے دل میں اتنا میل، حسد، کینہ، بغاوت. عید کو ملنے، عید آتی ہے نا، عید ایسے ملتا جیسے سرکاری بکرے مل رہے ہیں. خوب ملے گا عید. اور دل نرا کالا ہے، دل نرا کالا. بس خالی سینے ہی مل لیا، دل نہیں مل لیا. یہ اتنا کالا. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. اب نماز کام کیوں نہیں آ رہی بتاؤں؟ ہاں نماز بھی پڑھ رہا ہے مگر دل پھر بھی کالا. اگر اٹھک بیٹھک کرو گے تو پھر میں بھی اٹھ جاؤں گا. نماز بھی پڑھ رہا ہے مگر دل کالا. عالم یہ ہے اگر کسی بھائی کا نا مکان بن رہا ہے تو بس پڑوسی کے پیٹ میں آگ لگ رہی ہے. اس کا مکان ہی کیوں بن رہا؟ کیا ہوا؟ بیٹھو. مگر یہ دل جو صاف کرو گے نا، اگر یہ دل اچھا کرو گے تو اس کی اہمیت الگ ہے. کیا معاملہ کیا ہے؟ کہیں نہیں. ارے کہاں جا رہے؟ بیٹھتے کیوں نہیں؟ بیٹھو. دیکھو توجہ رکھو. ادھر بیٹھو. ادھر نانی صاحب بولو. بھائی بیٹھ جاؤ بھائی. ارے بیٹھیے. چور پکڑ لیا. چور بھی بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. اے بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھو. ارے کوئی بات نہیں، آپ لوگ بیٹھیے. بیٹھے رہو بھائی. آپ بہت اللہ کا بڑا. چلو بیٹھو. بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. اے بھائی بیٹھو. ارے کیوں جا رہے ہو یار؟ بیٹھو یہیں. بیٹھو. سب لوگ بیٹھے رہنا. ارے اگر چور پکڑ بھی لیا تو تم کیا بٹوارا کرنے جا رہے ہو کیا؟ ٹائم کیا ہوا؟ مجھے لگ رہا ہو گیا کام. 1 گھنٹہ ہو گیا حضرت. تقریب 1 گھنٹہ ہو گیا. ہاں 12 بجے بیٹھے. اپنا کام تو ہو گیا. کام تو ہو گیا اور 10 منٹ بول دیا. تو ایسے میں تو یار موضوع نہیں بن رہا ہے. جتنے بیٹھے آپ لوگ بیٹھے ہیں نا. ارے جو گئے وہ گئے. شیطان بلغلاتا ہے لوگوں کو. کتنے لوگ سنیں گے حضرت کی تقریر؟ آپ لوگ جائیں گے تو نہیں؟ بالکل پکا وعدہ کر رہے ہیں؟ سچی بات کر رہے ہیں؟ جو گئے انہیں مت دیکھیے گا، لوٹ کے آئیں گے. آپ نبی کی بات سنیے گا، حضرت سنائیں گے. گر مت جائیے فوٹو لیتے ہوئے. ارے ہم کمزور آدمی کا فوٹو لے کے لے تو تگڑا ہمارے بھائی. چلو بیٹھ جاؤ. جو لوگ ادھر آدھر کھڑے ہیں وہ آ کر کے بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں. یہ کمیٹی والے کہاں؟ کمیٹی والے 2-4 جا کر کے ان کو بٹھا لاؤ، اٹھا کے لاؤ. ہوا کیا ہے کچھ پتا تو چلے. ارے ہوا کیا؟ خبر بھی تو دو. کچھ نہ ہوا بولے حضرت. کچھ نہیں ہوا. جا کہاں رہے ہو پھر؟ ختم کر. ہاں صحیح ہے. 10 منٹ بول لو. 10 منٹ بول لو. چلو بس 10 منٹ. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا پر جو تشریف لائے، ان کے تشریف لانے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے. واہ. آقا
12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए। आका की शान ये है, मेरे आका की वालदा हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा खुद फरमाती हैं कि जब मैं छोटी सी थी अपने बाप के घर में, तो हमारा मकान भी पथरीला इलाका था, पत्थरों का मकान था, और कभी कभी नंगे पैर चला करती थी तो पांवों में वो पत्थर चुभते थे, हर एक के चुभते हैं। तकलीफ इतनी होती थी कि पकड़ के बैठ जाती थी। कहा मैं जवान हो गई फिर भी यही रहा। फिर मेरा रिश्ता हजरत अब्दुल्ला से हो गया, शादी हो गई, हजरत अब्दुल्ला के घर चली गई। जिस रात में हजरत अब्दुल्ला के सुल्बे पाक से मेरे शिकमे पाक में आका का हुजूर का जो नूर अपनी मां के पेट में गया, रहम में गया, तो हजरत आमना खुद फरमाती हैं उस दिन के बाद मैं जब भी नंगे पांव चला करती थी और अगर कोई पत्थर का टुकड़ा या कोई कांटा अगर मेरे पांव के नीचे आता था तो वो चुभता नहीं था बल्कि मोम बन जाया करता था। बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं मैं गदा तू बादशाह, क्या बात, भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। हजरत आमना फरमाती और फरमाती हैं कि एक मर्तबा उस वक्त औरतें जो थी कुएं से पानी भरती थी, तो इनका भी एक कुआं था जहां पे मर्द नहीं जाते थे, औरतें जाती थी। मेरे नबी की मां भी गई, पेट में आका थे, कुएं से पानी भरना था, औरतों की बारी थी, यके बाद दीगर औरतें भरती चली जा रही हैं, पानी भरती चली जा रही हैं। मेरे नबी की मां की जब बारी आई तो दिल में ख्याल आया, ए आमिना एक मर्तबा कुएं के अंदर झांक के देख ले, कहीं ऐसा तो नहीं है वो पानी नीचे चला गया हो और तुम्हारी रस्सी छोटी पड़ जाए, वहां तक बर्तन ना पहुंचे। हजरत आमना फरमाती हैं मेरे पेट में नूर मोहम्मदी थे, मेरे प्यारे बेटे का नूर था। फरमाती हैं जब मैंने उसमें झांका तो एक आवाज आ जाती है, ओ कुएं के पानी किस्मत पे नाज कर ले, ये पैगंबर इस्लाम आखिरी नबी उनकी मां है, ये नबियों के नबी उनकी मां है, ये उस नबी की मां है जिस नबी के सदक़े में कायनात का जर्रा जर्रा बना है। उस नबी की मां का दीदार कर ले। जब इतना कहा तो कुएं का पानी बाहर निकला और हजरत आमना के सारे बर्तनों को वो पानी भर गया। ये उस वक्त की बातें हैं, नबी अभी दुनिया पे तशरीफ नहीं लाए। अब 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक का वक्त होता है, आका दुनिया पे तशरीफ ले आते हैं। हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के बाप इंतकाल फरमा गए थे जब नबी पेट में थे। तभी आपके दादा को फिक्र रहती थी कि मेरी बहू के यहां बेटा हो जाए ताकि अब्दुल्ला की नस्ल चल जाए। उन्हें क्या पता था कि ये ऐसा चराग होगा, ऐसा चराग होगा कि पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। और बहू इतनी शानदार थी, अपने ससुर से कभी कोई चीज तलब नहीं, शिकायत नहीं। यहां तक के तारीख में आता है कि जिस रात आका पैदा हुए थे उस रात में हजरत आमना के पास इतने पैसे नहीं थे कि तेल खरीद करके चराग में डाल लें। अल्लाह अल्लाह, नबी जब पैदा हुए आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला, खाना काबा में थे, वो दौड़ते हुए आए, कहा बेटी बहू आमना मुझे पता चला है, क्या अब्दुल्ला की निशानी हुई है, बेटा हुआ है? कहा अब्बा जान ऐसे ही हुआ है।
तो फिर दादा बोले बेटी बहू आमना मेरा दिल तड़प रहा है, अगर इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं। हजरत आमना ने कपड़े उपड़े संभाले, जो भी तरीका था, और कहा अब्बा जान आ जाइए, मेरे नबी पे कपड़ा ढका हुआ है, आका पे कपड़ा ढका हुआ है, लेकिन कपड़े के अंदर से रोशनी छन छन के इतनी निकल रही है कि कमरे को पूरे रोशन किए हुए है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा और देखने के बाद कमरा रोशन था तो फिर सोचने लगे चिराग किधर जल रहा, इधर देखे ऊपर देखे नीचे देखे, चिराग कहां जल रहा है, मगर चिराग कहीं नहीं है। इतने में मेरे नबी ने पांव हिला दिया, जब पांव का अंगूठा कपड़े से हिला तो रोशनी फैल जाती है। रोशनी फैली तभी समझ जाते, कहा बेटी बहू आमना मुझे मेरे लाल को दिखा दे, देखने को तबीयत चाह रही है, मैं देख तो लूं मेरा पोता मेरी तरह है या अपने बाप की तरह। आमना बताओ किसकी तरह है, अगर मेरे नबी की कोई मिसाल हो तो आमना मिसाल दे, मेरे नबी तो बेमिसाल थे। कहा अब्बा जान लो, हजरत आमना धीरे धीरे खोलती जा रही है और रोशनी बढ़ती जा रही है, कपड़ा हटाती जा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है। दादा ने सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा बेटी बहू आमना अगर इजाजत हो तो मैं इसे लेकर के जाऊं। वो लोग जो मीलाद पर फतवा लगाते हैं, वो लोग जो मीलाद को गलत बताते हैं, मीलाद को गलत बताते हैं, तो उनसे कहना नबी के दुनिया पे आने के बाद सबसे पहले जिसने मीलाद पढ़ा, जिसने मीलाद कहा, उस पे जाके फतवा लगाओ और जहन्नम में चले जाओ। कहा कौन है वो, सबसे पहले नबी का मीलाद किसने पढ़ा? ये भी सुन लो, नबी के दुनिया पर तशरीफ लाने पर, हजरत दुनिया के तशरीफ लाने पर अल्लाह अल्लाह मेरे नबी गोद में है दादा की। अब दादा चलते चले जा रहे हैं, कहीं और नहीं गए, सीधे खाना काबा के पास जाते हैं। जैसे ही खाना काबा पर गए, जितने बुत थे थर थरा करके गिर जाते हैं। मेरे नबी के दादा ने जब एक कदम खाना काबा के अंदर रखा और एक कदम बाहर है, खाना के दरो दीवार मीलाद पढ़ने लगा, कहने लगा जान नबीजुल मुख्तार, वलिदन नबीजुल मुख्तार, बाइख्तियार नबी आ गया, बाइख्तियार नबी पैदा हो गया। खाना काबा की दरो दीवार कह रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अरे नबी पे मीलाद पढ़ा जा रहा है, सबसे पहला मीलाद नबी पे अगर किसी ने पढ़ा तो वो खाना काबा है। इन लोगों से कहो जाओ, अगर तुम्हें फतवे लगाना है तो खाना काबा पे फतवे लगाओ और सीधे जहन्नम में चले जाओ। जी जी। कुछ लोग अगर घर पे झंडी लगाते हैं उन्हें भी तकलीफ होती, मगर बात का यार हमें पता चलना चाहिए ना, खाली लड़ना झगड़ने से काम थोड़ी चलेगा कि ये झंडी क्यों लगाते हैं, कहां से साबित है, पता चलना चाहिए ना। घरों पे हरे हरे झंडे लगाते हैं नहीं लगाते हैं? बोलो सुनना चाह रहे हो या नहीं? पता चलना चाहिए। नबी की पैदाइश के मौके पर हजरत आमना खुद फरमाती, कहती हैं हजरत जिब्रील आ जाते 3 झंडे लेकर के। कितने बोलो? हजरत आमना फरमाती हैं 3 झंडे लेकर के हजरत जिब्रील आए, एक मशरिक में और एक मगरिब में और एक खाना काबा की छत पे। सारे जहान को घेर दिया, मशरिक में मगरिब में बीच में खाना काबा की छत पे। अब इन लोगों से कहना जो झंडों पे फतवा लगाते हैं, कहना हम पे फतवा मत लगाओ, जिब्रील पे लगाओ अगर दम है तो। सबसे पहले नबी की पैदाइश पर अल्लाह ने हजरत जिब्रील के जरिए झंडे लगवाए। तो आप बताओ, अल्लाह को ये पसंद था, झंडे लगवाए तो हम तो वो काम करेंगे जो अल्लाह को पसंद हो। रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।